Hello, sir. Hey, good morning. How are you? Fine, sir. Okay. Rest. Yes, sir. You feel rested? Yes, sir. Okay. I had sent you the paper and वो solutions. yes, sir. ठीक है. Okay, so we had done photoelectric effect Hmm. and now what we will do is the study of photoelectric effect and see how does intensity of light and potential and frequency of the incident radiation is dependent. Okay, Okay. so ठीक है. let's experimental, very simple again, which Hmm. complicated any experimental study of photoelectric effect. Okay, so the effect is basically when we say effect, what we will do, we will change few parameters and see what is the impact on occurrence of photoelectric effect. So for example, if you have a situation where you have put light a wave EM wave on a photo emissive material of Hmm. frequency which is more than the threshold frequency, उससे तो बड़ी है, तो 100% photoelectric effect होगा. But now what you're doing is that you're increasing the intensity of light. Okay, so let's see Okay. what happens to the photoelectric current. So when we say current, what we mean is that we have a photo emissive material, and this photo material emissive material is bombarded by electromagnetic waves. The electrons come out of it, and then on the other side what we do is we have a positive plate, and this is in evacuated chamber, and the electron gets collected here, and you can see some reading here. So this is your incident EM wave. These are the electrons which are coming out with extra kinetic energy. The frequency of this EM wave is greater than the threshold frequency. अच्छा. तो निकाल के तो रहेंगे उसको बाहर. Hmm. So we will study now, when I say experimental study, that this current which is getting collected, so these electrons are moving inside the evacuated tubes are getting collected here. Hmm. और दिस ठीक है. इज योर फोटो एमिसिव मटेरियल जहां से वो निकल रहे हैं, और इस पे जाके दे आर स्ट्राइकिंग and current is. So what we will do now is we will increase the intensity of the light and see what happens. When I say light, I mean the EM waves. So these are your EM waves. Hmm. So when I say intensity, I mean that now I will have more photons of the same EM wave striking the photo emissive material. So that is what the meaning of intensity is. So what is noticed is number one, so this is your photoelectric current. अच्छा. ठीक First, है. photoelectric current because of the electrons which are coming out of the photoemissive material. So the photoemissive material is uh, releasing electron when it is being struck by the frequency of EM wave greater than the threshold. Electrons are coming out, and suddenly what you do, you decide to increase the intensity of the EM wave, which means you're now, for example, doubling, tripling, or 4 times the number of photons are being struck on the photoemissive material. What is noticed is as you are increasing the intensity, the photoelectric current increases linearly. So this is your
intensity of light, okay, and this is your photoelectric current. So more is the intensity, which means more the number of photons of the EM wave striking the uh, photoemissive material. So this is your photoemissive material. And how is this made positive? Because you have connected a battery to this, which makes it positive. So this side is negative, and this side is positive. Okay. So electrons are attracted towards the positive side, and Hmm. the circuit is complete. You find current flowing in this microammeter, then you double, then you increase the intensity further, more photons. So you start drawing the graph of the intensity, and Hmm. which means how many photons intensity of the EM wave which are incident on the photoemissive material, incident of wave, intensity of EM wave. This is the photoelectric effect. This is the photoelectric current, sorry, not effect. What's ठीक है. happening is so there is a linear relationship which is observed that Hmm. photoelectrons emitted per second. So this is photoelectric current. What is it? The photoelectric current, the photoelectric current is nothing but number of photoelectrons emitted per second. Right? These are the photoelectrons which are emitting. So more is the intensity. You increase the intensity further. Hmm. Strike more photons. You will find more photoelectrons coming out per second. So the current which you will capture here will increase. So if you draw a graph of the intensity versus what intensity of EM wave versus current in microamperes, you will see that the current is increasing in a linear way. Hmm. Okay? But the condition is obviously that bare minimum threshold frequency should be available. Right? Photosensitive materials are lithium, sodium, potassium, cesium, or barium. These are highly photosensitive. Hmm. Yes, So sir. when I say highly photosensitive, even if you strike them with visible light of sun, you will see the phenomena of, so they're highly, even with light waves, they will give you the photoelectric current, which is this. Hmm. ठीक है. Highly sensitive, Hmm. even with normal visible light. But if you talk about zinc, cadmium, magnesium, aluminium, these are going to emit light only with UV rays. So there's a restriction. Hmm. But lithium, sodium, potassium, any wave you strike will help. If there are heavy metals which are involved, X-rays, very powerful way to be used to generate photoelectric current. So this is the photoelectric current. The photoelectrons which are moving, they reach the positive plate and enter the circuit. That is what the photoelectric current is. So it is, the first was what is the effect of intensity of light on photoelectric current. Hmm. Any doubts in this? नहीं. ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, more the electrons, more is the photoelectric current, but Electric effect. you have to strike more intensity. ज्यादा फोटोन टकराएंगे ईएम वेव के, हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. ज्यादा फोटोन को मारोगे फोटो एमएसए मटेरियल के ऊपर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे. समझ गया.
Okay. What are photons? So read this. Okay. So that's साथ साथ. What are photons? Photons behave like particles. Hmm. Particle nature, basically. Oh. People thought EM waves are waves. Light is a wave, but Hmm. it turned out that light is actually made up of particles like photons. Hmm. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी जो आता है सैटेलाइट के थ्रू, पढ़ लिया. these are UV rays. तो फोटोन भी एक लाइट के अंदर होते हैं जो विच मेक अस बिलीव दैट लाइट इज अ पार्टिकल और EM waves are particles. Okay.
सो विजिबल लाइट जो हमारी आंखों को नजर आ रही है, हम्म, इट्स मेड अप ऑफ मीडियम लेंथ वेव्स. ठीक है. Photoelectric effect is an instantaneous effect. हम्म, It depends directly on intensity of light यस. and is independent of frequency. हम्म, Photoelectric effect is not dependent on frequency. After you have crossed a certain frequency of threshold, it really doesn't matter कि आपने कौन सी frequency लिया है. Photo electrons एक particular level of frequency बढ़ाने के बाद behavior wise don't exhibit any change. We will just discuss this. तो पहला समझ में आ गया होगा कि हम्म, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट current is directly proportional to intensity. हाँ, Okay. बाकी देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है फलाना ढिकाना. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड वन. Let's talk about the second. So how does the photoelectric effect depend on stopping potential? But you don't know what is stopping potential right now. हम्म, So let's first discuss effect of stopping potential on photoelectric current. तो हमारा सारा फोकस करंट है. So what हम्म, happens is once this इस डायग्राम में if you go back to this diagram, okay, जो ऊपर बनाया था हमने ये वाला डायग्राम. हम्म, If you go to this diagram, what happens is you have an option कि आप जो करंट ये जो करंट कलेक्ट कर रहे हो आप इस जगह पे, so this is your collector. हम्म, What you do is you reverse the voltage while collecting, ठीक है. and what you find is that these electrons which come out of natural kinetic energy stop because now they are being not attracted but repelled. So this collector plate is made negative. So these electrons start retarding. अगर पॉजिटिव रखोगे तो अपनी खींच खींच लेगा कलेक्टर प्लेट. हाँ, बट अगर आप इसको नेगेटिव बना दोगे तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव करते जाते हैं इसको प्लेट को. और हम्म, एक एक टाइम के बाद देखते हैं कि करंट आना बंद हो गया सर्किट में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट हो रहे हैं. बिकॉज हाँ, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड. करेक्ट. बट बिकॉज आपने उस साइड पे उनको अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल करने का काम शुरू कर रखा है कलेक्टर प्लेट पे, या नेगेटिव बना दिया आपने इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे आपके पास. ले जाएंगे. हाँ. दे कम आउट ऑफ द सरफेस, they come out of the surface with some kinetic energy. हम्म, So with that kinetic energy and attractive force, this get collected and a photoelectric current is generated. But if the collector side becomes negative, then what happens? If the collector side is negative, these electrons coming out decelerate and stop. हम्म, So current becomes zero. So what you're doing is this. You say, okay, let's plot the graph of photo photocurrent with anode potential. Okay, so let's do it. Let's do that. So let's see what happens. This is what is noticed.
ये नॉर्मल जोन है जहाँ पे अट्रैक्टिव अननोन पोटेंशियल है, तो करंट देखो काफी ऊपर चला गया। दिस इज योर करंट। हम्म। वेरी नाइस। दिस इज अनोड पोटेंशियल पॉजिटिव, अब अनोड पोटेंशियल नेगेटिव, कलेक्टर पोटेंशियल बेसिकली। So हम्म। notice if you're decreasing the potential, finally the current becomes zero. ये current है। करेक्ट। This is your photoelectric current. So what you notice is ये negative हो गया। तो if you notice for different situation of intensity, this is low intensity, this is higher and this is high. So आपने ज्यादा फोटोन, कम फोटोन मारे फोटो एमएसए मटेरियल पे, मतलब आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे है, तो आपका जो करंट का लेवल आया वो ये आया। हम्म। आपने वही फोटॉन्स बढ़ा दिए तो आपका करंट ज्यादा हो गया, और आपने यस सर। इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ये हो गया। अब आपने देखा कि चलो अगर मैं अट्रैक्टिव साइड रखता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स इफ आई कीप इट अट्रैक्टिव। करेक्ट। You're getting more photons, and because you're getting higher intensity EM waves striking, so more electrons come out, and therefore your current is high. And you can see after a certain time, the photoelectric current actually is not increasing but stabilizing. ये stable ही है, हाँ करेक्ट। स्टेबल ही हो गया एक तरह से, है ना। तो आप पोटेंशियल को, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कलेक्टर साइड पे पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो तो फिक्स्ड है ना। हम्म। आपने 100 इलेक्ट्रॉन्स भेजे, यस सर। 100 के 100 इकट्ठे हो गए, हम्म। आपने उनको पकड़ लिया सबको, तो अब आप यस सर। पोटेंशियल बढ़ाते रहो तो करंट थोड़ी ना बढ़ जाएगा। नहीं। Captured all the electrons. Now, if you increase the anode potential, doesn't matter. The anode potential will not help in any way. So, essentially, anode potential is increasing on the right hand side in a positive way, and you're getting good current and it stabilizes. थोड़ा सा बढ़ जाता है। Actually, ग्राफ जो मैंने बनाया थोड़ा सा गलत ग्राफ है। I will just correct myself. तो ये आपका जो वो है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ जाएगा और फिर स्टेबलाइज होगा, ठीक है। ये ठीक है। थोड़ी देर के लिए इट विल गो अप एंड इट विल स्टेबलाइज, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा और फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। थोड़ी देर जाता है फिर स्टेबलाइज हो जाता है। ये बेटर ग्राफ है, थोड़ा जा रहा है ना ऊपर अभी भी, हम्म। जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। हाँ। अब अनोट पोटेंशियल का असर खत्म हो जाता है, फ्लैट हो जाता है कर्व, ये हम्म। फ्लैटनेस आ गई। नो फर्दर इंक्रीज इन करंट, बढ़ा लो, सारे इलेक्ट्रॉन अग्रीड। पकड़ लिए। हम्म। अभी इस स्टेज पे फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आपके, कैप्चरिंग वाले। हाँ। अभी भी आप कैप्चर कर रहे हो फिर फ्लैट हो गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गए, अनोट पोटेंशियल बनाने से कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म। Let's talk about the left hand side. So look at the left hand side. Now you start decelerating and say, okay, I'm going to capture the electrons, but sorry, not capture the electrons, decelerate them. The collector plate, anode plate now becomes negative. And from here, the electrons which are getting emitted from the photoemissive material were rushing towards it are now not no longer wanting to rush. So you increase the negativity of this plate, you can see the current actually is reducing now. हम्म। ये नेगेटिव होता जा रहा है प्लेट, और एक करेक्ट। पॉइंट आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर तक नहीं पहुंच पाएगा। सम इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच इट बिकॉज दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव को ओवरकम करके पहुंच जाते हैं वो, लेकिन एक टाइम के बाद इतना नेगेटिव हो जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। सो व्हाट यू नोटिस इज दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी यू हैव, कितनी आपने यहाँ पे ये मतलब फोटो एमिसिव मटेरियल पे चाहे हाई इंटेंसिटी की ईएम वेव मारी,
या 2i की मारी, या आपने 3i इंटेंसिटी, 3 गुना फोटॉन्स मारे, हाँ। the stopping potential, the place of the potential which is inverted, which results in the cutoff of the current completely, which is this, is common. हम्म। ये देखो सबका, irrespective of intensity you have, the cutoff potential or the stopping potential is common. So this correct. means that the value of the retarding potential at which the photoelectric effect current becomes zero is called the cutoff or stopping potential. And it is so if you have तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो आपने फिक्स कर रखी है। हम्म। उस फ्रीक्वेंसी पे आप कैलकुलेशन करते हो कि चल मैं ये लाइट मार रहा हूँ और इसकी मैं ना इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, डबल कर दी। फिर उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को 3 गुना इंटेंसिटी कर दी, उसके 3 गुना ज्यादा फोटॉन्स मारे। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है बाय द वे, ठीक है। इतनी है कि थ्रेशोल्ड से ऊपर है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये पक्का कर लिया है। इतना हम्म। सुनिश्चित करना जरूरी है, दैट यू हैव टू इंश्योर दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। Now correct. the electrons are coming out, but now you're retarding them. What you find is for a given frequency of multiple intensities, if you do retardation process, the stopping potential is common, which means irrespective of the frequency you apply, sorry, irrespective of the intensity you apply, the potential at which all the electrons come to rest is same. The reason is very simple, because frequency से decide होता है कि electrons will come out or not. हाँ। Intensity से decide होता है number of electrons. हम्म। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो जो आपके काइनेटिक एनर्जी है, ये आपने फ्रीक्वेंसी ये फिक्स कर दी, दिस इज द एनर्जी यू आर गिविंग टू फोटो एमएसए मटेरियल, उसमें से कुछ हिस्सा वर्क पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए काम आ गया। The balance is used for kinetic energy. So kinetic energy of all the electrons is same. There may be more electrons coming out because the intensity is high, but each electron still has same kinetic energy because it हम्म। follows this rule. क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जिससे वो बाहर आया था वो फिक्स्ड है, वो जो वेस्टेज हो गई वर्क वर्क फंक्शन में, द इंटरनल हम्म। पोटेंशियल ऑफ द मटेरियल वो कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर of each electron remains same irrespective whether you apply one, double or triple the intensity. The kinetic energy is same, हाँ। and therefore the amount of energy required, the ev, the negative potential required to stop it is also same. समझ गया। सादा है तो क्या हो गया, सबके सब एक ही वेलोसिटी से बाहर आते हैं, तो उनको रोकने के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल काफी है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। If you हम्म। have an electron moving across a potential difference of E, from here to here, the potential difference is E, then the QV is the kinetic energy gained by the electron. V is the potential difference, Q is the charge on the electron. So if you have a charge moving from this place to this place, and the potential difference between these 2 points is V, the acceleration or the energy gained by the electron will be EV, E इजी times होगा। the potential difference between the 2 points. यस सर। सो अगर आपने इसको उल्टा कर दिया पोटेंशियल को, कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे हम्म। वो डबल इंटेंसिटी से बाहर निकले या ट्रिपल इंटेंसिटी से बाहर निकले। दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, whether यस you सर। double the intensity or triple the intensity makes no difference. हम्म। Count definitely increases. If you have single intensity, the number of electrons, for example, come out 10, but all 10 come out with same kinetic energy. Now you have double the number of electrons. You double हम्म। them. It's not the electrons, but double the photons, double intensity. 20 electrons will come out with the same velocity. ठीक है। Now you triple the intensity. That means 30 photons and 30 electrons come out. But again, 30 electrons have the same velocity as the previous situation. हम्म। So if you need an electron to accelerate from here to here, potential difference is V, and the kinetic energy it gains because of this is EV is equal to half mv square. हाँ।
So it doesn't matter how many electrons are there. Each electron will get accelerated by the same amount. It will gain an energy of EV. Hmm. Similarly, if the electron is moving with a kinetic energy of half mv square and you apply a reverse potential, then EV is the potential at which the kinetic energy will be reduced to zero. Hmm. So EV plus half mv square will become zero. So this is a negative potential you have given to the electron. This is the negative potential. Huh. Negative energy is being supplied to the electron. It itself has a kinetic energy. Hmm. And you're giving retardation to it. It is like a car which is moving on frictional road and you Hmm. are not having engine on. The car was moving, you switched off the engine. Now the friction will finally stop the car. ठीक है. Same. The electron now, instead of moving from minus to plus, is moving from plus to minus. तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देखेगा नेगेटिव उस साइड पे तो रुकेगा ना कहीं तो. Hmm. So that means now the electric field is supplying reverse energy to it. Either electric field is asking it to accelerate, भागो, gain करो, current बन जाओ. यहाँ पे उल्टा हो गया, पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव साइड ये, इलेक्ट्रॉन. अच्छा, क्लियर है. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड नहीं जा पाएगा ना, उसको पुश आएगा वापस. It has Correct. to stop. The current has to become zero. So whether you have 20 electrons coming Hmm. or 40 electrons coming, they will experience the same push from the other side. Because Understood. that side is completely negative. Plate, anode potential. ये positive है. हाँ. So the stopping potential is that potential at which the current which could have been achieved becomes zero. Because now you have reversed the potential of the anode. खत्म कर दिया आपने इसको. तो इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो 4 आए थे या 40 आए थे, 4 और 40 का इंपॉर्टेंस ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड striking EM waves, you're doubling it. So the number of electrons may double because of that. But stopping अच्छा. potential remains unchanged. It says if you are 5 electrons, I will be able to stop you at minus 5 volt. If you're 50 electrons, I will still be able to stop you at minus 5 volts. -5 है. मतलब your quantity does not matter to me. Hmm. What matters to me is each one of you has the same kinetic energy. But you just more. So my stopping potential remains the same. So stopping potential is an indirect way to measure the kinetic energy of the electrons. क्योंकि उतनी उल्टी एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और उसको जीरो बना रहे हैं उसकी एनर्जी को, वो स्टॉप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को. सो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में. जैसे वो निकला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, दिस इज द एनर्जी इट कैरीज. You supply minus 10 electron volt from your side. ठीक है. रुक जाएगा, it will stop. समझ गया. So this graph should be well understood. It's for a fixed frequency. ठीक है. Frequency change कर दोगे अगर, so what you will find that the graph will move upwards because if you increase, because अब frequency बढ़ाने से, ये बढ़ाने से kinetic energy जो बाहर निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो खर्चा है वर्क फंक्शन का वो तो फिक्स रहेगा. हाँ. ये बढ़ा दिया आपने तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी नेट. बिल्कुल. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी. हम्म. तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, वो इस तरफ खिसक जाएगा और नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपको उसको रोकने के लिए. सो if you do this experiment of making electrons stop with the higher frequency,
then you're saying in an indirect manner the frequency is going up, so my electrons which are coming out are with more kinetic energy. तो हम बोलेंगे Okay. if they are with more kinetic energy, then we will have to apply more decelerating potential, more negative. Hmm. So whatever was your stopping potential at frequency F, and you increase the frequency now to 2F, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो दोनों ही केस में क्रॉस हो रखी है। क्रॉस हो रही है। तो जो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम्म। अब आपने एच न्यू बहुत बड़ा कर दिया है, एच न्यू नॉट उतने का उतना ही है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मेनी फोल्ड्स. हम्म। Electrons will come very fast towards the positive side, but you have decided to make positive side negative. हम्म। If you see fast moving electrons coming towards you, you will have to increase the negativity of the anode side to stop them. So your stopping potential will go up on the left. So your stopping potential, which I've drawn as a spot, right, हाँ, will स्पॉट। now may shift here. अच्छा। More negative potential is required to stop them. Because of the photoelectric effect, their kinetic energy is very, very high. ठीक है। Next. ये नेक्स्ट जो है वो मैंने बता ही दिया है, पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ओके। सो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाउ of incident radiation on stopping potential. So you are doing the same experiment, and now what you're doing is you are increasing the frequency in the experiment. So mu3 is greater than mu2 is greater than mu1. So this is your stopping potential which you get. थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, सैचुरेट्स, फिर थोड़ी देर के लिए बढ़ता है अलग, और stopping potential. So three frequencies. The experiment is done. So this is your saturation current. Read this very carefully. These are stopping potentials. ओके। Look at frequency 3, very high, right? हम्म। Threshold frequency is overcome. The kinetic energy of the electron which is coming out is going to be highest here. हाँ। Therefore, it will be very difficult to stop it easily. So its stopping potential is the highest. ठीक है। सबसे नेगेटिव साइड पे चला गया, दूर. हम्म। बहुत तेज इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि तीनों के केस में खर्चा तीनों का W है, वर्क हाँ। फंक्शन ऑफ द मेटल, जो उसका अपना पोटेंशियल बैरियर है जो ओवरकम करना है. हम्म। बट द काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट इन ईच केस. अब हम्म। रोकना है उसको. हाउ डू यू स्टॉप दोज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मूविंग? अप्लाई अ रिटार्डिंग और अ स्टॉपिंग पोटेंशियल. करेक्ट। वाई एक्सिस पे दिस इज करंट. हम्म। Current is determined by number of electrons which are being received on the. So there are two sides. One is if you make the potential positive, तो ये ग्राफ बन रहा था. हाँ। और अगर आप नेगेटिव साइड पे कर दोगे पोटेंशियल को, तो ये बन रहा है. अब इस साइड पे आप कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हो करना. यू कैन सी थोड़ा बढ़ता है सबका कलर, सारे इलेक्ट्रॉन्स तीनों केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी,
ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी द सैचुरेशन करंट इज सेम, फ्लैट हो गया कर्व। हम्म। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तीनों फ्रीक्वेंसी से निकले थे जो, वो सारे कलेक्ट कर लिए गए। अब बढ़ ही नहीं सकता करंट, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल लगा। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करो रिटार्डिंग से, जो हमने पीछे पढ़ा रिटार्डेशन, या आप हाँ। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके रिसीव कर लो और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना लो। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, इस हम्म। ग्राफ में देखो बढ़ रहा है अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाते हो। अगर आप रिटार्डेशन वाली साइड पे जा रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो रहा कम हो रहा है, जीरो पे आ गया फाइनली। कोई करंट नजर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे लेकिन कोई करंट नजर नहीं आएगा। बोला भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो गया, बोला बंद नहीं हुआ, हमने अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देना, कलेक्ट नहीं हो करेंगे, हम इनको इनको रोकेंगे। है। हम्म। So if you maintain different frequencies, different stopping potential, which means at different frequencies, the kinetic energy was different. ये सब। तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसको रोकने में दिक्कत आएगी, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। ओके, सो इफ यू हैव टू शो वन ऑन वन, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल के ग्राफ है। बट इफ यू सी द ग्राफ ऑफ direct graph between the photoelectric potential. If you draw a graph of stopping potential, so this side is your stopping potential, this side is your frequency. You will see graph like this. तो थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी है, अब आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हम्म। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहीं लगाई तो कोई करंट नजर नहीं आएगा। Now let's अच्छा। apply some different frequency. So threshold frequency पे मेटल A निकल गया, मेटल बी हम्म। उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है। ओके, एंड इफ यू सी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, यू विल रियलाइज दैट दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, लेट मी जस्ट राइट हियर। तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको नीचे हम्म। एक्सटेंड कर दो। सो दिस इज माइनस डब्ल्यू नॉट, दिस इज योर मेटल ए, this is your metal B. You can see metal B में the threshold frequency is very high. म्यू ये वाली है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ। इलेक्ट्रॉन निकलना ही म्यू नॉट डैश पे होता है, जो काफी आगे है एक्स एक्सिस पे, हम्म। राइट। बट नोटिस द स्लोप ऑफ द ग्राफ, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अलग अलग मेटल्स के लिए बना रहे हैं, और देख रहे हैं उस मेटल के लिए, फॉर दैट मेटल व्हाट इज द टॉपिंग ग्राफ पोटेंशियल। बिटवीन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। व्हाट दे आर नोटिसिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स ओनली लुक एट मेटल ए, सिर्फ मेटल ए पे फोकस करते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा। डोंट फोकस ऑन ए, इस पे फोकस करो। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ठीक है। अब हमने इस मेटल के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करी, तो आपने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। हम्म। बिकॉज द हायर द फ्रीक्वेंसी, more difficult it will be to stop the electrons, so more will be the stopping potential required. For a given metal, if you increase the frequency, हाँ। don't do the experiment at a fixed frequency. Do the experiment at different frequencies for a given metallic surface. Threshold frequency के ऊपर बढ़ाते जाना फ्रीक्वेंसी को, अच्छा। बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो आपने देखा यार अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की उसी मेटल से, तो उसको रोकना भी हम्म। मुश्किल हो जाएगा। दैट हाँ। मीन्स हायर इज द
Higher is the frequency of the incident radiation, more is the kinetic energy, more is the stopping potential. So you can see it's a linear relationship between stopping potential and the incident frequency. Higher is the incident frequency. जैसे जैसे म्यू नॉट के आगे बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली उसके साथ साथ बढ़ रहा है. हम्म रीजन इज वेरी सिंपल. एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये बेसिकली इसी को खत्म करना है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो बनाना है. नहीं जीरो करना। तो हम्म काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ईवी नॉट. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उल्टा रिवर्स्ड. हम्म तो मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से. जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आ गया. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगाई आपने, ये लगाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो ठीक है। वर्क फंक्शन था वो 4 था. हम्म तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बची वो 2 बची. यस आपको सर। इसे खत्म करना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को. आप नहीं चाहते कलेक्ट करना. आपने हम्म इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर ईवी नॉट लगाया. तो आपने देखा यार मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है. अब आपने हम्म फ्रीक्वेंसी 8 कर दी. खर्चा तो अभी भी 4 ही है स्टॉपिंग चार पोटेंशियल है। का. अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 4 EV. तो आपने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा? 4 वोल्ट्स. आपने बोला यार लेट मी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी. यू रियलाइज इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज मान लो अब आपने फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड करी है वो ऐसी करी है कि द वैल्यू बिकम 16. हम्म तो 16 में से 4 तो फिर वेस्ट हो गए यस सर। मेटल से बाहर बाहर निकालने में. 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इसको जीरो बनाना है. हम्म तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 12 आ गया. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके साथ लीनियरली बढ़ रहा है. तो हम्म इसलिए स्ट्रेट लाइन है. समझ गया। ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कर रहे हो आप उस केस में. हाँ। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाते, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं. ठीक है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे किसी ईएम वेव की तो हम्म आप उसकी ताकत जो है ईएम वेव की वो नहीं बढ़ा रहे. उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो पैदा करेगा वो ज्यादा है. क्योंकि अब आप इंटेंसिटी का मतलब है तो फोटॉन्स ज्यादा है आपके पास. तो हर हम्म फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है. हाँ। तो फोटॉन जब जाते हैं सरफेस के ऊपर, तो अगर 20 फोटॉन भेजोगे सेम फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड से ऊपर तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. हम्म 30 भेजोगे तो 30 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. 20 आ जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव डिसाइड्स the quantity of photoelectric effect, quantity of photoelectric current. 30 photons go, 30 electrons come out. 40 photons go, 40 electrons come out. So 40 electrons come out means the current has increased. But you say तो I am अगर not going to increase the क्वांटिटी intensity. तो चेंज हो सकती है ना उसमें। हाँ, हाँ आप ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव जो मार रहे हो उसके ऊपर उसको चेंज कर दो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स. पहले आप एक टॉर्च लो छोटे से गोले की अच्छा। और सरफेस के ऊपर मारो. फिर हम्म एक टॉर्च लो ज्यादा मोटे शीशे की और उसके अंदर वो, तो ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा मेटल का. हाँ। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ लाइट in a layman's language striking the surfaces has gone up because now your एक। torch is very big. हम्म The more electrons will come out. यस सर। So one is intensity of light, EM wave striking the photoemissive material, where you are increasing the number of electrons by increasing the intensity. The second is you don't increase the number of electrons. You say, I'm going to increase the kinetic energy of the electron. How do you increase the kinetic energy of the electron? What you do is you increase the frequency of the same light. You keep the number of photons same, but every electron which is striking the surface has higher energy. So अच्छा। the electron which is coming out will have more kinetic energy because हम्म excess energy is available to you. हाँ। जो फोटोन आया उसके पास एनर्जी थी 10, उसमें से 2 ही लगे निकालने में, 8 बची काइनेटिक एनर्जी. अब एक और फोटोन आया उसकी फ्रीक्वेंसी और हाई है, उसके हम्म पास एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. निकालने में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगे.
बट अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकला इलेक्ट्रॉन 18 है एक्स्ट्रा. तो दैट इलेक्ट्रॉन इज, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ electrons coming out of a material, strike it with a higher intensity light. But if you don't want to increase the number of electrons on emitting from a surface, rather increase the frequency of the light, because higher frequency will mean higher kinetic energy of the electrons which are coming out. ठीक है. Tell me if this is making sense. अब क्लियर है. हाँ. है? ठीक है ना? अब ये सब. मुझे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इंटेंसिटी बढ़ाओ, हम्म. ज्यादा फोटोन भेज दो. एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता. फॉर योर इंफॉर्मेशन, अ सिंगल फोटोन इज ओनली केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स 1 इट. इलेक्ट्रॉन. चाहे हम्म. उसके पास 10 की ताकत हो. एक मेटल है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए. हम्म. आपने एक फोटोन भेजा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. ठीक है. एक मेटल है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी है. आपने फोटोन जो भेजा वो कितना भेजा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. हाँ. व्हाट इज द इंप्रेशन यू गेट? कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए? हम्म. नहीं निकलेंगे. 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अगर एनर्जी, तो दो ही यूज हो पाएगी. बाकी 18 जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको मिल जाएगी. अच्छा. अच्छा. हाँ हाँ. जी. ठीक नहीं है. मिलेगी उसको. बाकी अच्छा. 18 वोल्ट उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन निकाल नहीं पाएगी बाकी 10 इलेक्ट्रॉन को वो. आप ओके, बोलोगे तो समझ यार गया. 18 बची तो 9 इलेक्ट्रॉन और बाहर आ जाएंगे फिर. हम्म. नहीं आएगी. एक फोटोन करस्पॉन्ड्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. नाउ लेट ठीक अस है. कंसीडर वन केस where you have the amount of energy required to extract the electron from the material is 3 electron volts. Now ओके. throw 5 electron volts on it. EM wave. Amount of energy used up to take out the electron will be how much? 3. ठीक है. बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं वही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बन पाएंगे. स्लो. अच्छा. तो ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ खास नहीं होगा. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, रोक लोगे आराम से. 2 वोल्ट से रोक लोगे. बट पिछले केस में जहां पे 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अवेलेबल थे, वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल 18 वोल्ट्स. बहुत तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट की फोटोन की ताकत बहुत ज्यादा थी, बट निकाल वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया था. अगले हम्म. केस में आपने ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन करा, लेकिन इंसिडेंट लाइट में की जो वो है इंटेंस वो फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम कर दी. हम्म. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 3 यूज हो गए और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे. इजी टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. If you need more electrons, increase the intensity. If you need high kinetic energy electrons, increase the frequency. So concept of high uh, frequency will result in higher stopping potential. रोकना मुश्किल हो जाएगा उनको. Higher the frequency, more will be the kinetic energy of the electrons. ओके. क्लियर है. ठीक है? यस सर. So this is a straight line. Higher is the हम्म. frequency, more is the stopping potential. हम्म. एंड सिंस आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को पॉजिटिव साइड पे बनाया है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड पे बन गया ऑटोमेटिकली. हम्म. तो ये आपका वर्क फंक्शन है. इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो आप लगा रहे हो, दिस फ्रीक्वेंसी इफ यू ड्रॉ इट बैक फ्रॉम हेयर, यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी एनर्जी है ईवी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. सो अगर आपने इतनी फ्रीक्वेंसी लगाई पॉजिटिव साइड पे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो एच न्यू नॉट है. काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी नहीं आपको, हम्म. क्योंकि आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी लगाई है इस लायक कि इलेक्ट्रॉन भारी आ जाए, बस दैट्स ऑल. हाँ. उससे ज्यादा है ही नहीं आपके पास एनर्जी, तो वर्क फंक्शन के बराबर है आपकी. सो ठीक देर है. इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन यू अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज. स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ ये है.
This graph is between stopping potential and applied frequency. Linear graph. More is the frequency, more is the stopping potential. ये stopping potential वाली साइड ही नहीं है बाय द वे। ये तो वो वाली साइड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने लग जाएंगे, कलेक्शन शुरू हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव है तो इन्होंने दूसरी साइड पे पॉजिटिव वाला बना दिया। समझ गया। द मैक्सिमम हो गया इसका वो बोर्ड खत्म। काइनेटिक एनर्जी। रीड दिस लाइन। मैं तो पता है अपने एग्जाम में जब लिखता था ना आंसर अंडरलाइन करके आता था इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कि टीचर अच्छा। को दिख जाए मैंने कॉन्सेप्ट सही लिखा है। ओके। इंटेंसिटी तो कभी भी डिसाइड करती नहीं है, इंडिपेंडेंट होती है, हाँ। इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, पढ़ ली। Read this also. I will just underline the keywords. ओके। No, ये तो बेसिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हाँ। तुम जितनी मर्जी इंटेंसिटी लगा लो, कितने हम्म। फोटोन भेज दो, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ताकत वाले हैं, को नहीं कर सकता। कोई एमिशन नहीं होने वाली। हम्म। Your emission will start instantaneously. Remember, it doesn't take time. It's an instantaneous process. हम्म। कोई लैग नहीं होता उसके अंदर, घंटा लगेगा बाहर आने में। जैसी फ्रीक्वेंसी क्रॉस हुई पटाख बाहर। ठीक है। इनफैक्ट जो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये भी होता है कि टाइम इट टेक्स टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज ओनली दिस मच। हम्म। अगर आपका एक फोटोन आके पैकेट आई, मान लो पैकेट, पार्टिकल नेचर हो गई ना अब, ये सब। पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग एंड स्ट्राइकिंग 10⁻⁻⁻2 में। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी के फोटोन है तो इतने सेकंड में, तो मतलब इसको तो नाप भी नहीं सकते हम। हम्म। इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा।
इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ओके। पढ़ ली सर। ठीक है। Okay. So let me discuss one more point. Okay. So which is the failure of the classical वेव थ्योरी। ऑल्दो हमने वेव थ्योरी पढ़ी नहीं क्लासिकल अभी, बट लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स। जो क्लासिकल वेव थ्योरी है उसने बोला था ये जो ईएम वेव्स होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज वगैरह वगैरह, हाँ। all these waves are made up of a magnetic field and an electric field. This is what was said by the classical wave theory. UV rays, X rays, सबकी सब जो है they are made up of तो वेव थ्योरी के हिसाब से whenever a wave strikes a metal surface, the free electrons at the surface absorb the energy and greater is the intensity of the incident radiation. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जब हम बोलते हैं हायर इंटेंसिटी की वेव आई है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत रखती है, एक्चुअली इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग हायर इंटेंसिटी मींस हायर मैग्नेटिक फील्ड एंड हायर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अ वेव लाइक दिस which is an EM wave is actually made up of electric field and magnetic field. ओके। एक उसके अंदर ये फील्ड होता है, दूसरा फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो एज पर द क्लासिकल वेव थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी वो ये बोलती है कि जहां पे ट्रीट करा जाता है कि द ईएम वेव्स आर वेव्स ओनली, हाँ। द since the if you're increasing the intensity of the wave, therefore you are increasing the electric and magnetic field, and therefore the density of the wave is very high, and therefore higher intensity should result in liberation of photoelectrons with greater kinetic energy। ठीक है। अग्रीड। तो बट ऐसा दिखता नहीं है, कि दिखता यही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। इट हैज नथिंग, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। क्लासिकल नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें ये है इफ यू नीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी प्लीज इंक्रीज द frequency of radiation. If you need high kinetic energy, please increase the incident frequency। अच्छा। जो अभी हमने पढ़ा, हम्म। if you need high kinetic energy electrons, increase the frequency of the incident radiation।
ठीक है। But if you need the बट क्लासिकल वेव मैकेनिक्स जो है, मतलब वो ये बोलती है कि अगर आप हाई इंटेंसिटी भी मार दो ना, हम्म। दैट मीन्स हमारी भाषा में मोर इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा। हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो पढ़ा कि इफ यू हैव मोर हायर फ्रीक्वेंसी देन योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी हाई। हम्म। ये हमने पढ़ लिया। यस सर। वेव थ्योरी बोलती है इफ यू हैव हायर इंटेंसिटी विच मींस योर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक वेव को बनाते हैं, ईएम वेव को बनाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो आप ज्यादा इंटेंसिटी की भी लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को वो जब टकराएगी तो द जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाई काइनेटिक एनर्जी का होगा। ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने वो एक्सपेरिमेंट करा तो हमें पता चला कि हायर काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती। हम्म। लेकिन इससे पहले यही सोचते थे लोग कि ईएम वेव आएगी, उसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा हमें वो मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। हम्म। So if the wave comes with high electric field and a magnetic field made up of this, it strikes the surface of electron. Higher is the intensity, मतलब higher is the electric and magnetic field which strikes the electrons inside the metal. The electrons which come out will be of higher energy. But ऐसा निकला ही नहीं। निकला ये कि फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है काइनेटिक एनर्जी, ना कि इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी। तो क्लासिकल वेव मैकेनिक्स के थॉट प्रोसेस अलग थे। वो बोलते थे हायर इंटेंसिटी शुड रिजल्ट इन हायर काइनेटिक एनर्जी, whereas experimentally it was found that higher frequency resulted in higher kinetic energy. तो ठीक है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, क्योंकि वेव थ्योरी की सोच ही अलग है। वेव थ्योरी बोलती है तुम बड़ी बड़ी मोटी वेव भेजो हायर मैग्नेटिक फील्ड और हायर इलेक्ट्रिकल फील्ड की, आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हम्म। क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इट विल ट्रांसफर लॉट ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट। ठीक है। नहीं हुआ ऐसा। They turned out to be wrong. अंडरस्टूड। They could not explain. So you cannot explain the concept of photoelectric effect if you had not done this experiment। जो हमने वो जो फोटो एमिसिव मटेरियल के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये कलेक्शन सारा जो ऊपर ग्राफ बनाया, अगर हम वो एक्सपेरिमेंट करते नहीं तो हमारे पास यही रह जाता पुरानी वेव थ्योरी के हिसाब से कि यार हायर इंटेंसिटी मींस हायर काइनेटिक एनर्जी। गलत। सो ईएम वेव का जो बिहेवियर है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द size of magnetic and electric field it is made up of. It is not. Its intensity is only dependent on number of photons. ओके। अच्छा, क्लासिकल वेव थ्योरी बोलती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी इनफ, और उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। हम्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, before the concept of photoelectric effect came, there was a concept there of some concept called as classical wave theory. As per the classical wave theory, if you have a EM wave of any frequency, हम्म। it will be good to remove an electron from the metal. कोई फर्क नहीं पड़ता जी, थ्रेशोल्ड है नहीं है। अच्छा। बट प्रैक्टिकली क्या पता चला था, आप कितनी ज्यादा फोटॉन्स लगा लो लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाले फोटॉन किसी हालत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट नहीं दिखा पाएंगे। हम्म। द
the photoelectric phenomena, that is emission of electrons upon striking of a certain frequency on the photoemissive material, was visible only when the photons of a certain frequency were given to the substance, and that frequency was called as a threshold frequency. हाँ बट क्लासिकल मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। ओके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती। आप कोई भी वेव भेज दो, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट। ओके रॉन्ग थिंकिंग। हम्म So wave theory was very wrong and could not decide whether there is a threshold frequency for a metal or not. Wave theory को बिल्कुल नहीं पता था कि there is something called as a work function. हम्म You need a bare minimum threshold frequency to start this emission of electron. As per wave theory, intensity अच्छी है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। फिर तो गलत ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बोला तुम जो मर्जी कर लो इंटेंसिटी से, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो कितने ही फोटोन लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। हम्म और एक इलेक्ट्रॉन भी काफी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम एमिट हो ही जाएगा आपका। तो इंटेंसिटी ओनली विल डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट। इंटेंसिटी कैन नॉट डिसाइड whether the electron will come out or not. That is decided by threshold frequency. बट क्लासिकल वेव मैकेनिक्स जो है, नॉट मैकेनिक्स, ईएम वेव थ्योरी, जो हम्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है, हम्म उसके हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं होता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मर्जी वेव लगा दो, उसके पास ताकत होनी चाहिए बस। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला, ताकत इज फाइन, ताकत से भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड होते हैं, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड हाँ से ऊपर होगी, तभी फिनोमिना स्टार्ट होगा। आप ताकत लगाते रहो लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रखोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। हम्म, ठीक है। यही बोला ना फोटो हाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो, यस हाँ आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट करा था, हर्ट्स ने। हम्म खैर हमें साइंटिस्ट के नाम से कोई लेना देना नहीं है कि हु वो तो डिड व्हाट। कोई एक बार इतना हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं होता वो कि। सो कैन वी से दैट एज पर ईएम वेव्स, ईएम वेव थ्योरी, क्लासिकल ईएम वेव थ्योरी, हम्म द electrons are emitted because of intensity. We can कह say that, सकते हैं। right? हाँ कह सकते हैं। And as per the photoelectric theory proposed by many scientists and finally written by Einstein, the electron emission is a function and dependent on threshold frequency, not on intensity. ये फॉल्स है। True है ना यार? Electron emission is only dependent on the frequency. It is अच्छा ओनली threshold frequency, डिपेंडेंट ऑन, मेरे को only dependent इंडिपेंडेंट on. में नहीं। Yes. ट्रू ठीक है। सही है। ये सब तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी पता चली इससे, हम्म क्योंकि फोटॉन्स नाउ है बिकम पार्टिकल्स। वो पैराग्राफ जो मैंने टाइप दिखाया था हाँ पिछले पेज पे, आई थिंक इट वाज ऑन द सेम पेज और सेम प्रीवियस पेज, राइट? टीवीएस था। यस। पहले ईएम वेव के हिसाब से वेव्स वर ओनली पार्टिकल्स, सॉरी वेव्स आर ओनली वेव्स। हम्म ये वेव है तो जी वेव ही है फिर तो, ये मतलब वेव नहीं होती है। ये तो फोटोन जो है पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स। तो वो भी एक नई बात पता चली। हम्म
एक्चुअली हमने पहले वो पढ़ ली है सारा, आइंस्टाइन की थ्योरी ना, हाँ पढ़ ली। वो हमने पढ़ ली कि क्या होता है वो। हम्म। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी कर डाले हमने उसके। हाँ। तो ये चैप्टर का फोकस पता है क्या, ये चैप्टर का फोकस भी यही है कि जो वेव्स होती हैं, दिखा ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम्म। जनरली इंप्रेशन है कि रेडिएशंस आर वेव्स, अच्छा। बट इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा कि जो सो कॉल्ड रेडिएशन या ईएम वेव्स हैं, रेडिएशन भी ईएम वेव ही होती है, हम्म। दे आर पार्टिकल्स आल्सो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स गुब्बारे वाला काम करते हैं, दे आर पार्टिकल्स। हम्म। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नतीजा ये निकला कि लोगों ने एक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिर्फ वेव ही नहीं माना, पार्टिकल भी माना। हम्म। तो वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर फिजिक्स। हाँ। यस सर। ये अर्ली 19 मतलब 24-25 में हो रहा था। अच्छा। सो एक ईएम वेव ना केवल वेव होती है बट पार्टिकल भी होती है। पढ़ो इसे। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम्म। एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन, यस सर। ये प्लैंक ने दिया था। अच्छा। कि किसी भी फोटोन की एनर्जी एच मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव। ये सारी ईएम वेव्स हैं हम्म। जिनको रेडिएशन से बोला जाता है, रेडिएशंस। तो प्लैंक का भी इसमें मतलब देयर इज अ कंट्रीब्यूशन, प्लैंक आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके। आई एम नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू नाउ बिकॉज आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ डिस्कशन टुडे। काफी करिए हाँ।
पढ़ लिया सर। सोलर सेल्स जो होते हैं, आजकल हाँ। सोलर का बहुत क्रेज है, यस सर। बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ। सनलाइट जो है वो आती है, हम्म। फोटो एमएसए मटेरियल पे टकराती है, इलेक्ट्रॉन्स गेट जनरेटेड एंड आर गेटिंग कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। To me, it's a big deal. This experiment was a very big deal being. ठीक है, let's do one thing in the evening now. Let's हम्म। do some questions on this topic. ठीक है, कोई नया टॉपिक अभी शुरू नहीं कर रहा मैं, अनलेस ओके। वी जो भी हमने ग्राफिकली अभी स्टडी करा है ना सारा, हाँ। we will do practice on that and numericals of photoelectric effect and see whether we are able to understand. The next topic then we will do is the application. तो हमें काफी न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे before we move into the application side, which is photo cell, जैसे मैंने आपको बताया सोलर सेल। हाँ। ठीक है, तो लंबा चैप्टर नहीं है ये ज्यादा कोई खास। फोटो ओके। इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट, एक डी ब्रॉगली इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डी हम्म। ब्रॉगली, एंड देन दिस चैप्टर फिनिशेस आई थिंक। ओके। प्रैक्टिस है इसके अंदर बहुत सारी, यू टू डू लॉट ऑफ ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट टू बी एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन दिस। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा था, तो लेट्स डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस। ओके, क्वेश्चन टू यू, व्हाई डू सम मटेरियल्स नॉट exhibit the photoelectric effect regardless of the frequency of incident light? दिखाते ही नहीं है। अच्छा। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि यार थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो दिखाई दो ना यार फिर, हम्म। लेकिन ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी इतनी बाइंडिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की कि आप इतने मतलब पक्के तरीके से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल से कि वो कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ओवरकम नहीं कर, मतलब इतनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल चाहिए एनर्जी कि एच न्यू नॉट जो वर्क फंक्शन है वो इतना ज्यादा होता है कि आप कितनी इंसिडेंट ईएमएफ लगा लो, उसकी एनर्जी कमी पड़ जाती है। आप क्योंकि एज एन इलेक्ट्रॉन इतने मजबूती से बाउंड हो अपने लैटिस से कि आपके ऊपर आती है, कोई भी आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कह रहा है जी मैं इतना मजबूती से जुड़ा हूं, पोटेंशियल जो है उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते। अब तो कुछ मटेरियल हैं दुनिया में जो दिखाते नहीं है ये इफेक्ट को। अच्छा। छोटा सा मतलब एक सोच है।
ठीक है जी. ठीक है सर. See you in the evening and let's do some practice on this now. Needs a ठीक lot है of सर. practice. Theoretical perspective ले लिया हमने. अब देखते हैं हाँ. हम उसे लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं. ये सर. All right. See you in the evening then. Bye. Have a good